एनआरसी के डर से पानीहाटी में आत्महत्या के आरोपों पर अब राजनीति गर्मा गई है। बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही प्रदीप की मौत का मामला शुरू हो चुका है। आत्महत्या करने वाला प्रदीप कर एनआरसी के डर से ग्रस्त था। पता चला है कि उसने सुसाइड नोट में यह लिखकर आत्महत्या की। इस घटना के तुरंत बाद अभिषेक बैनर्जी अगरपाड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतक परिवार से मुलाकात की, प्रदीप के परिवार से बातचीत भी की। अभिषेक बैनर्जी ने चेतावनी दी है कि हम तृणमूल कांग्रेस भाजपा से बदला लेंगे। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर भाजपा नेता प्रचार करने आए तो उन्हें खंभों से बांध देंगे। जब तक ममता बनर्जी जीवित है हम एक भी जान असमय नहीं जाने देंगे। স্থানীয় যারা বিজেপি নেতারা যদি এখানে ঢোকেন ঘিরে ধরবেন, এদেরকে বলবে বাবা ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবে। বাবা ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবি। বেঁধে রাখবেন, বেঁধে রাখবেন, গাছে পোস্টে বেঁধে রাখবেন, হাত তুলবেন না। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। বলবেন সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর তো দড়ি খুলবো। যা, তোর বাবার সার্টিফিকেট, বাবার বার্থ সার্টিফিকেট, তোর দাদুর বার্থ সার্টিফিকেট, তোর ঠাকুরদার বার্থ সার্টিফিকেট, আর তোর দিদিমার বার্থ সার্টিফিকেট, তোর অমিত শাহ মোদী সরকার যে আমাদের থেকে সার্টিফিকেট চেয়েছে, আগে তোরা সেই সার্টিফিকেট মানুষকে দেখা, তারপর কাগজ চাইবি মানুষের থেকে। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इस आत्महत्या की खबर एसआईआर की घोषणा के 24 घंटे के भीतर आई। इसके बाद उन्होंने प्रदीप के परिवार वालों से संपर्क किया। उन्होंने साफ कह दिया है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह इस घटना के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार और अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अभिषेक ने इस घटना के लिए भाजपा नेताओं को ही, जैसा मैंने बताया आपको, कि जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को पेड़ों से बांधने की भी धमकी दी। उन्होंने सवाल उठाया, क्या ज्ञानेश कुमार के पिता का नाम मतदाता सूची में है? क्या आप दिखा सकते हैं? क्या रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री उनके दादा का जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? কেন্দ্র সরকার ভাবছে কি, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা আমি বাংলাদেশি ঘোষণা করে দেবো, যাকে ইচ্ছা আমি রোহিঙ্গা ঘোষণা করে দেবো। জ্ঞানেশ কুমারের বাবার নাম আছে ভোটার লিস্টে, ডকুমেন্ট দেখাতে পারবে? অমিত শাহর বাবার জন্মের সার্টিফিকেট দেখাতে পারবে? প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ক্যাবিনেটে যারা মন্ত্রী রয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, তার বাবার ঠাকুরদার জন্মের সার্টিফিকেট দেখাতে পারবে? যারা ইলেকশন কমিশনে কাজ করেন দেখাতে পারবেন? স্থানীয় যারা বিজেপি নেতারা যদি এখানে ঢোকেন ঘিরে ধরবেন, এদেরকে বলবে বাবা ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবে। বাবা ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবি। বেঁধে রাখবেন, বেঁধে রাখবেন, গাছে পোস্টে বেঁধে রাখবেন, হাত তুলবেন না। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। বলবেন সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর তো দড়ি খুলবো। যা, তোর বাবার সার্টিফিকেট, বাবার বার্থ সার্টিফিকেট, তোর দাদুর বার্থ সার্টিফিকেট, তোর ঠাকুরদার বার্থ সার্টিফিকেট, আর তোর দিদিমার বার্থ সার্টিফিকেট, তোর অমিত শাহ মোদী সরকার যে আমাদের থেকে সার্টিফিকেট চেয়েছে, আগে তোরা সেই সার্টিফিকেট মানুষকে দেখা, তারপর কাগজ চাইবি মানুষের থেকে। अभिषेक ने कहा, यहाँ आएंगे तो आपके पिता दादा का प्रमाण पत्र मांगेंगे, नहीं देंगे तो बांध दिया जाएगा, हाथ हम नहीं उठाएंगे। आपके पिता दादा का प्रमाण पत्र मांगेंगे और नहीं देने पर पेड़ से बांध देंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, एसआईआर 4 तारीख से शुरू होगा, मैं भी सड़क पर रहूंगा, चिंता मत कीजिएगा। उन्होंने कहा, एक जीवन हमारे लिए मोती के समान है। अगर किसी भी वैध मतदाता का नाम छूट गया तो मैं 1 लाख लोगों को दिल्ली ले जाकर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगा। আমি সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবেশী যারা আছেন, যারা আমার কথা শুনছেন, আমি আপনাদের করজোড় করে অনুরোধ করছি, হাত জোড় করে সবাইকে, যে আপনারা ভয় পাবেন না, আমরা বেঁচে আছি। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকতে, আমরা থাকতে এত সোজা না যে বছরের পর বছর 40 বছর, 50 বছর, 30 বছর ধরে যারা বাংলায় রয়েছে, যাদের বাবা, দাদু, ঠাকুরদা একের পর এক প্রজন্ম বাংলায় রয়েছে, তাদেরকে বাংলাদেশি বলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এত সোজা নয়। আমরা বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করব।
আমি প্রত্যেকটা লোককে, প্রত্যেকটা মা ভাই বোনেদের, প্রত্যেক পরিবার যারা আমার কথা শুনছেন, বিশেষ করে কলোনি এলাকায় যারা থাকেন, তারা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন। কোন এসআইআর এনআরসি করে বাংলার একটা মানুষকে যদি এরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়, আমরা 1 লক্ষ লোক নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব। কত ধানে কত চাল এদের বোঝাবো, এত সোজা নয়। अभिषेक का दावा है कि आत्महत्या करने वाला प्रदीप घर का इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार भविष्य को लेकर चिंतित है। सिर्फ पानीहाटी ही नहीं, बल्कि एक और व्यक्ति ने दिन में डर के मारे आत्महत्या करने की कोशिश की, यही अभिषेक बैनर्जी ने कहा। इस संदर्भ में अभिषेक ने यह भी कहा, क्या हिंदुओं का वाहक होने का दावा करने वालों ने एक बार भी जांच की है? कौन तय करेगा कि कौन बांग्लादेशी है? अभिषेक ने धमकी दी कि प्रदीप कर की मौत के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस का एक जुलूस निकलेगा। नारा होगा, सारे बंगाल की एक ही आवाज, प्रदीप कर को न्याय दो। সারা বাংলা জুড়ে একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর। এই স্লোগানকে সামনে রেখে কালকে মিছিল হবে এবং আগামী দিন আমি আবার আসবো এখানে, কথা দিয়ে গেলাম। কেউ ভয় পাবেন না, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। স্থানীয় যারা জনপ্রতিনিধি আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। মমতা ব্যানার্জি সরকার থাকতে আর মমতা ব্যানার্জি বেঁচে থাকতে একটাও প্রাণ আমরা অকালে যেতে দেবো না, এটা আমাদের দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা। मृतक के परिवार का दावा है कि प्रदीप ही एनआरसी की बात करता था। वो कहता था वे हमें गिरफ्तार कर लेंगे। वो शुरू से ही एनआरसी की बात करता था। देखना अब ये है कि इस घटना के आधार पर अब बंगाल की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।